4, open your literature book to page 71. The story of Dr. Dolittle. Once upon a time, many years ago, when our grandfathers were little children, there was a doctor and his name was Dolittle, John Dolittle, MD. MD means that he was a proper doctor and knew a whole lot. He lived in a little town called Puddleby on the marsh. All the folks, young and old, knew him well by sight. The dogs and the children would all run up and follow behind him, and even the crows that lived in the church tower would caw and nod their heads. The house he lived in on the edge of the town was quite small, but his garden was very large and had a wide lawn and stone seats and weeping willows hanging over. His sister Sarah Dolittle was housekeeper for him. This is a story of a doctor whose name was Dolittle, MD. He was a MD doctor. MD doctor means he was a special doctor, specialized doctor. And he lived in a little town. एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था called Puddleby. हाँ, Puddleby on the marsh. अब सब बड़े लोग और छोटे बच्चे भी, बूढ़े बच्चे, सब कोई उसे पहचानता था. जब भी उसे देखता था, देखते ही पहचान जाता था. Even the dogs and the children would run up and follow behind him. उसके पीछे पीछे दौड़ते थे, कुत्ते बोलो, बच्चे बोलो. और even the crows, और crows जो चर्च टावर में रहते थे, उन लोग भी कॉ करते थे और nod their heads, अपना सर हिलाते थे. और जो घर पे वो रहता था, वो बिल्कुल भी एज में रहता था, कोना में, और बहुत स्मॉल था, वॉज क्वाइट स्मॉल. लेकिन उसका गार्डन जो था बहुत बड़ा था, और उसमें एक बड़ा सा गार्डन लॉन भी था, और जहाँ पे स्टोन सीट्स बना हुआ था और वीपिंग विलोज हैंगिंग ओवर, फ्लावर्स सब झूल रहे थे. उसके घर का देख रेख सब करता था उसकी बहन सारा डूलिटल. He was very fond of animals and kept many kinds of pets. Besides the goldfish in the pond at the bottom of his garden, he had rabbits in the pantry, white mice in his piano, a squirrel in the linen closet, and a hedgehog in the cellar. He had a cow with a calf too, and an old lame horse, 25 years of age, and chickens and pigeons and 2 lambs and many other animals. But his favorites were the Dab Dab the duck, Jib the dog, Gub Gub the baby pig, Polynesia the parrot, and the owl Too Too. अब वो उस गार्डन में एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें गोल्ड फिश था, और फिर पैंट्री में रैबिट्स थे, वाइट माइस था उसके पियानो के ऊपर में, स्क्विरल उसके लिनन क्लोसेट मने जहाँ पर सब उसका बेडशीट वगैरह सब लिनन रखता था उसमें था, अलमारी में. उसके बाद हेजहॉग बोल के एक चीज़ था, वो भी जानवर उसका सेलर में था. एक काऊ था और उसका बछड़ा भी था. लेम हॉर्स था जो 25 साल पुराना था, बूढ़ा था. चिकन्स एंड पिजन्स, 2 लैम्स भी थे. और लेकिन उसका फेवरेट कौन था? उसका फेवरेट था डैब डैब द डक, जिब द डॉग, गब गब द बेबी पिग, और पॉलिनेशिया द पैरट एंड द आउल टू टू. ये सारे उसके पेट्स थे. His sister used to grumble about all these animals and said they made the house untidy. And one day, when an old lady with a rheumatism came to see the doctor, she sat on the hedgehog who was sleeping on the sofa and never came to see him any more, but drove every Saturday all the way to the Oxenthorpe, another town 10 miles off, to see a different doctor. अब क्या हुआ, उसकी बहन हमेशा उसको बोलती थी कि तुम ऐसे करते रहते हो, सारा घर में इतने सारे जानवर हैं, कोई भी तुम्हारे घर पे नहीं आएगा. और एक दिन एक लेडी जो उसके पास में आई थी, रूमेटिज्म मतलब उसे पेन था, हड्डी में दर्द होता था, तो वो वहाँ आई थी और सोफ़ा के ऊपर में बैठ गई. और सोफ़ा में कौन था? हेजहॉग.
और वो जो डर के भागी और कभी वापस आई नहीं। और हमेशा वो एवरी सैटरडे बहुत दूर जाती थी, अनदर 10 माइल्स जाती थी दूसरे डॉक्टर के पास में, और कभी नहीं वापस आई। Then his sister Sarah Doolittle came to him and said, John, how can you expect sick people to come and see you when you keep all these animals in the house? If you go on like this, none of the best people will have you for a doctor. फिर उसने बोला, उसकी बहन ने उसे समझाया कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा, कोई भी बीमार आदमी आने से पहले लोग डर जाते हैं, और अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो कोई भी अच्छा लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बट आई लाइक द एनिमल्स बेटर देन द बेस्ट पीपल, सेड द डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि हमें तो लोगों से अच्छा ये जानवर अच्छे लगते हैं। यू आर रिडिकुलस, सेड हिज सिस्टर एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। अब उसकी सिस्टर बहुत गुस्से में बाहर चली गई। So as time went on, the doctors got more and more animals, and the people who came to see him got less and less, till at last he had no one left except the cat's meat man, who didn't mind any kind of animals. अब क्या हुआ, रहते रहते एक एक करके सारे लोग दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, और इसके पास में कोई भी नहीं आता था एक्सेप्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा खाली एनिमल्स लोग आते थे दिखाने के लिए। अब क्या हुआ, एक्सेप्ट द कैट्स मीट मैन, एक कैट्स मीट मैन था, वो खाली आता था क्योंकि उसे जानवरों से डर नहीं लगता था। एंड नाउ व्हेन ही वॉक डाउन द स्ट्रीट इन द हाई हैट, पीपल वुड से टू वन अनदर, देयर गोज जॉन लिटिल Doolittle MD. There was a time when he was the best known doctor in the West Country. Look at him now. He hasn't any money and his stockings are full of holes. अब लोग बातें करने लगे, जब भी उसको देखते थे बोलने लगे कि देखो ये एक इतना अच्छा डॉक्टर, एक ज़माना था इतना अच्छा था, अब देखो इसके पास पैसा भी नहीं है, और उसका जो मोज़े है, मोज़े में भी पूरे भरे मने होल्स भरे हैं, एकदम छेद छेद है। बट द डॉग्स एंड द कैट्स एंड द चिल्ड्रन स्टिल रैन अप and followed him through the town, the same as they had done when he was rich. जब वो अमीर था तब भी उन लोग पीछे पीछे दौड़ते थे, कैट्स एंड डॉग्स और बच्चे, उसी तरह अभी भी उन लोग उसके पीछे पीछे गए। One day, doctor was sitting in his kitchen talking with the cat's meat man who had come to see him with a stomach ache. एक दिन क्या हुआ, कैट्स मीट मैन आया था, उसे पेट में दर्द था, तो वो उसके पास आया था डॉक्टर के पास में। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat's meat man. The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain. She started to listen. अब क्या हुआ, वो कैट्स मीट मैन जो था वो आकर डॉक्टर डूलिटल को बोला, क्यों नहीं आप जानवरों का डॉक्टर बन जाते हो। हाँ, तो उसका जो पैरेट था, वो पॉलिनेशिया जिसका नाम था, वो विंडो में बैठकर बाहर बारिश देख रही थी, और वो उसके बातें को सुनने स्टार्ट कर दी। यू सी डॉक्टर, द कैट्स मीट मैन वेंट ऑन, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, मच मोर देन दीज वेट्स टू. That book you wrote about cats, why it's wonderfully, you might have been a cat yourself. बोला आपने जो एक किताबें लिखी थी कैट्स के बारे में, वो आप कितना अच्छा से लिखे, आप तो जानवरों को अच्छा से पहचानते हो, आप डॉक्टर बन जाइए जानवरों का। अब ये सब सुन रहे थे। Do you know that, you see, I'd send all the old women who had sick cats or dogs to you, and look, all the farmers round about who had lame horses and weak lambs, they'd come, be an animal doctor. बोला आप एनिमल डॉक्टर बन जाइए, और हम आपके पास में सब कैट्स और डॉग्स और जितना फार्मर्स लोग के पास में हॉर्सेस है उन लोग को भेज देंगे, आप उन लोगों का डॉक्टर बन जाइए। When the cat's meat man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, that man's got sense, that's what you ought to be an animal doctor. तो बोला, देखा जब वो आदमी चला गया, कैट्स मीट मैन चला गया, तो पैरेट ने बोला, देखा वो ठीक ही बोल रहा है, तुम क्या करो, एनिमल डॉक्टर बन जाओ। ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, सेड जॉन डूलिटल। बोला नहीं, बहुत सारा एनिमल डॉक्टर है यहाँ पर। आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, नो, yes there are, said Polynesia, but none of them are any good at all. Now listen doctor, and I'll tell you something. Did you know that animals can talk? बोला बहुत डॉक्टर्स है, लेकिन आपको क्या पता है कि एनिमल्स लोग बात कर सकते हैं।
आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोला हमको पता है कि पैरट्स लोग बात करते हैं। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस। बोला पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, सेड पॉलिनेशिया प्राउडली। इफ़ आई से Polly wants a cracker, you understand me, but hear this, का काई की फी फी। बोला कि हाँ, पैरट लोग का दो रकम का लैंग्वेज होता है, एक एनिमल लैंग्वेज और पीपल्स लैंग्वेज और एक बर्ड लैंग्वेज। तो क्या अब अगर हम बोलते हैं कि पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, तुमको समझ में आता है, लेकिन ये सुनो का कोई फ़ी फ़ी, अगर ये तुम सुनते हो तो इसमें क्या समझोगे तुम? गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर। बोला ओ माई गॉड, ये क्या बात हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स इज़ द पॉरेज हॉट येट, इन बर्ड लैंग्वेज। बोल रहा है बर्ड लैंग्वेज में इसका मतलब हुआ क्या अभी तक ये पॉरेज गर्म है? माई यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. Who you wouldn't have understood me if I had. तो डॉक्टर ने उसे पूछा कि तुम तो कभी ऐसे बात नहीं करते थे हमसे। तो बोला क्या फ़ायदा, अगर हम आपसे बर्ड लैंग्वेज में बात करते तो क्या आपको समझ में आता? नहीं समझ में आता है। तो बोला ओके, टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर, ऑल एक्साइटेड, एंड ही रश्ड over to the drawer dresser and came back with the butcher's book and a pencil. बोला कि अब वो बहुत खुश हो गया और जल्दी जल्दी से दौड़ कर गया और ड्रॉर से बुचर्स बुक निकाला, एक बुक और पेंसिल, और बोला अब चलो जल्दी जल्दी बताओ, एंड आई राइट इट डाउन, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट। बोला तुम बोलो जल्दी जल्दी ABC बताओ बर्ड लोग का और हम उसमें लिखेंगे। So that was the way the doctor came to know the animals had a language of their own and could talk to one another. And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table, giving him bird words to put down on the book. अब क्या हुआ? Put down in the book. अब उसने क्या क्या, पूरा शाम बारिश हो रही थी और पॉलिनेशिया उसको ABCD लिखवा रही थी और उसको बहुत मज़ा आ रहा था, और इस तरह डॉक्टर डू लिटिल पूरा बर्ड लैंग्वेज सीख गया। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द स्टोरी। थैंक यू।